Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Syed Wakil welcomes you to Dr. Wakil's English Club. Today is 17th August 2025. Let me just share the objectives of establishing Dr. Wakil's English Club. The objective is to give a platform to vernacular medium students to learn English. The objective is not to teach English but to aware people regarding how they can learn and how they can improve their English language, particularly Hindi, Marathi, and Urdu. So, my most viewers are, or most learners are from Urdu medium. So, we'll start the session. Due to security reasons, I have switched off the button. Nobody can unmute and switch on their camera so that you can attend this session carefully. Okay, so first of all, we will have a quick revision of the previous sessions. I will just share my screen. I will make Hafiz sir is there. I welcome you, sir. I will make you co-host. Only you can unmute and you can update me. I will just share my screen. Sir, please unmute and you can share whether my screen is visible or not. Shortly I will share. Now you can check. Yes, now your screen is visible to all the learners. Thank you very much. Dear participants, we are learning English using the artificial intelligence. Shortly we say it AI. Officer, please mute. Click on mute. Okay. Okay. Now you can see my screen. I am using Copilot. You can see here the icon. Okay. Now you can. All the participants are advised to install Copilot, ChatGPT, DeepSeek. Try to learn AI to learn any subject. The objective of Dr. Wakil's English Club is not to teach English only, but to aware people regarding usage of the artificial intelligence in their studies. So I request you to kindly note down some important notes. Please download Copilot app and you can see here the various options. Quick response, if you click 2-3 seconds it will take. Think deeper, it will take around 10 seconds. I will opt this, and the third option is smart. So based on our response it guides us. So I will just click on think deeper. Okay, so this is how we use. Now I will just ask Copilot, teach me various subjects, pronouns in a tabular form. Use Urdu, Hindi, मराठी also. ये मैंने सिर्फ कमांड दिया उसको कि भाई मुझे ये सीखना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा हेल्प करो. ठीक है, इसमें अगर कुछ मिस्टेक है कुछ है तो अपने को करके देता है. ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करना है. इफ़ यू क्लिक हियर सबमिट मैसेज. ठीक है, मैंने इसको बोला कि मुझे वेरियस सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन आई, ही, शी, इट और टेबुलर फॉर्म में मुझे बना के दो. मेरे पास कोई चौक नहीं है, कोई डस्टर नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है. मैं काम पे लगा रहा हूँ एआई को. ठीक है, तो एआई का यूज़ आपने आपके सभी सब्जेक्ट्स के स्टडीज़ के लिए आपको करना है. आप जो चीज़ एआई से कराना चाहते हैं उसको प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं.
ठीक है, यानी मुझे क्या चाहिए, तो आप अपने कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको मदद करेंगे। अभी देखो ये 30 सेकंड में इसने बनाया कि भाई फर्स्ट उसने बताया फर्स्ट पर्सन आई रहता, उसका उसने ट्रांसलेशन दिया, मैं ये सब मराठी में मी होता। सेकंड उसने बताया यू होता, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पर्सन ही शी और इट बताया, ठीक है। अभी उसने फर्स्ट प्लूरल बताया कि आई का प्लूरल क्या होता, वो वी होता यानी हम होता, ठीक है। उसने सेकंड पर्सन बताया इधर यहाँ पे प्लूरल में, वो भी यू होता, ठीक है। और थर्ड प्लूरल उसने दे बताया। ये उसने बताया कि भाई ये सब्जेक्ट्स रहते जिसको हम आमतौर पे जुमले की शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैंने जो दूसरा बताया था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते प्लीज़, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ तो एआई की वजह से थोड़ा सा ट्रांसलेशन करते वक्त थोड़ी बहुत गड़बड़ होती, कोई बात नहीं, अपना जितना अपने को समझता उतना उसका यूज़ करने को, उससे गलती भी हो सकती, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये देखो उसने जो मी लिखा मराठी में वो इंग्लिश में भी एम आई करके दिया। मतलब भाई अगर कोई यूएसए का आदमी है, जापान का आदमी है, अगर उसको हिंदी भी सीखना है तो वो इंग्लिश में लिख के देता अपने को, और कोई फीस नहीं लेता है, फ्री में, ठीक है। अभी उसने बताया कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या रहते हैं, वो सब बताया उसने। कि आई का मी होता, ऑब्जेक्ट आई, आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे होता। उसी तरह यू का यू होता, ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता, उसे बोलेंगे तो हिम होता। शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता सिंगुलर के लिए, लड़की का बोलेंगे या लड़की को बोलेंगे तो हर होता। उसी तरह ईट होता, वी का अस होता, यू होता। उसने बेहतरीन बना के दे दिया उसने। उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव बताया उसने, यानी मैं आए लेकिन मुझे बोलना है मेरा, तो पजेस का मतलब होता कोई चीज़ अपने पास होना, कोई चीज़ अपने पास होना, तो उसको पजेस बोलते, उससे पजेसिव बना। पजेसिव खुद एक एडजेक्टिव है। तो आई का माय होता, माय मतलब मेरा। यू का योर होता, ही का हीज होता, शी का हर होता, इट का इट्स होता। हम वी आवर हमारा, यू तुम योर तुम्हारा। उसी तरह दे का देयर होता। इतना बताया उसने। अब उसने बोला कि भाई आपको एक्सरसाइज करना है, ये करना है, वो करना है, मैं मदद करूँ क्या। अब इसको बोलूंगा मैं कि टीच मी यूज ऑफ एम इज आर विद दिस सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मुझे एम इज आर का इस्तेमाल बताओ इसके साथ में, ठीक है। अभी मैं उसको बोलता नहीं कि मुझे उर्दू करो हिंदी करो, सिर्फ मैं उसको लिखता उर्दू। सिर्फ मैं सेंटेंस में नहीं लिख रहा, लेकिन एआई कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है, देखो मैं इसको सिर्फ उर्दू हिंदी बिना वर्ब क्या, मैंने सिर्फ लिखा कि भाई मुझे ये, वो ऊपर देखता वकील सर ने क्या कमांड दिए थे, क्या चाहिए था उनको, वो 30 सेकेंड्स लेता है। तो सब्जेक्ट्स का उसने बताया कि आई मतलब मैं होता, मी मतलब मुझे होता, माई मतलब मेरा होता। तो पूरा उसने हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर, मराठी के अंदर अपने को ट्रांसलेशन करके दिया। अब ये 30 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली सोचता है कि प्रॉम्प्टिंग क्या दी है मुझे वकील सर ने, यहाँ पे उसने बना के दिया। क्या भाई आई के साथ में एम इस्तेमाल होता, आई के साथ में इज आर इस्तेमाल नहीं होता, फिक्स माइंड में फिट कर लेने का। आई के साथ जो बी है, बी वर्ब टू बी, उसका एम इज आर वाज वेयर, फ्यूचर में शैल विल भी होता। तो बी जो है ये मेन वर्ब है, बी से ही एम इज आर बने हुए। अच्छा इसे इसने नहीं बताया इधर, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप ये दे सकते। आई एम होता, यू आर होता, ही इज होता, शी इज होता, इट इज होता। और उसने हिंदी में, मराठी में, उर्दू के अंदर भी आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। प्लीज़ मैं 2 सेकंड आपको और देता हूँ, आप प्लीज़ स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। आई एम, यू आर, आगे आपको जुमला नहीं बोलना है। आपने पहले इंग्लिश सीखने के लिए पहले सिर्फ सब्जेक्ट बोलना है, आई मतलब मैं होता। फिर मैं हूँ बोलने के लिए आई एम आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। यू मतलब तुम, आप होता, सिंगुलर भी यू होता, और एक से ज़्यादा भी लोग रहे तो हमको यू बोलते। यू की खास बात क्या है कि यू सिंगुलर भी यू ही रहता है, और एक से ज़्यादा भी रहा तो वो यू ही रहता है। तो यू के साथ आर लगता है। कुछ लोग नए नए इंग्लिश सीखते तो यू के साथ इज लगा देते, बोलते सिंगुलर है, नहीं, यू सिंगुलर भी रहा तब भी उसके साथ आर लगता है, ये ग्रामर है। उसके बाद में ही इज, शी इज, इट इज, और ये प्लूरल के साथ आर लगता। इसका बेसिक रूल क्या है कि आई के साथ एम लगता,
सिंगुलर के साथ ईज लगता, आई को छोड़ के, यू सिंगुलर छोड़ के, सभी के साथ ईज लगता है सिंगुलर। जितने भी प्लूरल रहे तो उनके साथ आर लगता। क्या लगता? आर लगता। उसका ट्रांसलेशन भी आप उर्दू में देख सकते हैं कि है बोलते, हूँ बोलते, है बोलते। ये बेहतरीन उर्दू के अंदर उसने, हिंदी के अंदर, मराठी के अंदर बगैर किसी फीस के हमारी खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो पेरेंट्स यहाँ पर शामिल हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मोबाइल बच्चा जो देख रहा, वो मोबाइल के अंदर दूसरी चीज़ें देख रहा, नहीं कि सॉन्ग देख रहा है, गेम खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो उसको बोलना बेटा ठीक है, आज के बाद आपको को पायलट इंस्टॉल करना है और उसमें आपकी पढ़ाई क्या कर सकते वो भी कर सकते। मेरे सेशन अटेंड करने के बाद आपको लगेगा कि वकील सर इंग्लिश पढ़ा रहे क्या एआई पढ़ा रहे, आप कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन यू कैन लर्न एनी सब्जेक्ट। आप एआई को बोलो मेरा शेड्यूल बना के दो, मैं उर्दू मीडियम का हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश इन 30 डेज, को पायलट आपको 30 डेज का कोर्स बना के देगा। आप बोलेंगे कि मैं गिव मी डिटेल्ड नोट्स, नोट्स बना के देगा। फिर बोलेंगे वकील सर का काम क्या है? वकील सर का काम, आपके टीचर का काम गाइड करना है। नाउ द टीचर्स जॉब इज नॉट ईजी। मतलब मैं पढ़ाने से पहले नोट्स हम पहले देखते थे, लिखते थे। अभी हम पढ़ाने से जाने से पहले को पायलट देखते कि भाई इसमें क्या है, तो हम ये देखते कि इसमें क्या नहीं है और हम वो भी बच्चों को दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बी से एमेजार बना, तो उसने नहीं बताया इधर, मैंने आपको बताया, आपको मिसाल के तौर पे। ठीक है, उसने ये बता दिया। ठीक है, ये उसने बता दिया, बड़ा अच्छा बता दिया उसने। अभी मैं इसको बोलूँगा कि भाई टीच मी, सिर्फ एक एक चीज़ सीखने का, ज़्यादा नहीं। टीच मी नेगेटिव sentences from the above examples और अदर एग्जाम्पल्स। उसको बोलना भाई ठीक है, ये भी लो, बाद में जो आपको जब फ्री में चीज मिली तो एक नहीं लेने का। ये जो मैंने कमांड दिया इसको प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। यानी मैंने आपको इससे पहले के सेशन में बताया था कि प्रॉम्प्टिंग क्या है, एआई क्या है। तो वो जीनी की तरह है। आप चिराग जो होता था उसको घसने के बाद क्या हुक्म मेरे आका, आप जो उसको हुक्म देते हैं वो प्रॉम्प्टिंग है। मेरे नज़दीक प्रॉम्प्टिंग की एक सिंपल डेफिनेशन, जितना अच्छा आप प्रॉम्प्टिंग देंगे उतना अच्छा आपको एआई रिजल्ट देगा। आपको हुक्म देते आना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, हाँ। अभी उसने बताया नेगेटिव फॉर्म, उसने को ये टू बी बताया, अभी इसने अभी बताया, मैं आपको पहले बता चुका इसके बारे में। अभी देखो उसने बताया कि आई एम नॉट, यू आर, यू आर। मतलब एम इज आर के बाद नॉट लगाने से वो नेगेटिव बनता, यानी आपको कोई चीज़ नहीं बोलना है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि भाई ये पेन है, इट्स अ पेन। ये पेन नहीं है, इट इज़ नॉट, इट इजंट अ पेन। मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, उसका लॉजिक क्या है? ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। व्हाट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नज़दीक नेगेटिव का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जिसको हम मनफी बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। कोई भी नेगेटिव आप सेंटेंस बोलेंगे तो उसका मैथ्स के हिसाब से, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं चीज़ों को लॉजिकल सोचता हूँ, रटना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जितने भी पढ़ाई किया मैं समझ के पढ़ता हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी मैं नॉट भी पढ़ा तो मैं सोचता भाई कि इसका क्या लॉजिक हो सकता, मैथ्स का क्या फॉर्मूला हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता कि इसका फॉर्मूला ऐसा हो सकता कि एट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो दो ही ऐसे टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। वैसे जिसका नाम सिंपल रहता वो सिंपल नहीं रहता। आप अगर टेंसेस पढ़ेंगे, मेरे नज़दीक सबसे गहराई वाला टेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस है। बाकी के टेंसेस उसके मुकाबले में इजी। हम अगला जो कुछ सेशंस रहेगा तो उसमें हम टेंसेस सीखेंगे। जैसे कि आगे हम सेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस लेने वाले। अच्छा, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ठीक है, ये उसने नेगेटिव बना के दिया, एकदम सिंपल। तो सिंपल सिंपल सीखने का ऐसा देखो, उसने अभी उसने जुमला बना के दिया, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म नहीं। उसका ट्रांसलेशन भी किया, ये आपका ट्रांसलेशन भी कर रहा है आप बिना किसी। तो ट्रांसलेशन का जवाब गया कि नहीं गया? एआई ने बोला मैं करता हूँ, क्या चाहिए सर आप? सर वकील सर ने टेबुलर फॉर्म में बोला, मैं आपको टेबुलर फॉर्म में दूंगा। सर ने हमको बोला कि उर्दू हिंदी मराठी में करो, अरबी में पर्शियन में क्या मांगता आपको मिलेगा। मुझे अरबी नहीं आती है बोलते, लेकिन को पायलट बोलता मुझे आती है, आप खिदमत का मौका दो। तो मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वाट एवर यू आर स्टडिंग, दोज हु आर फ्रॉम उर्दू मीडियम, हिंदी मराठी मीडियम,
and if you are studying in 11th standard, if you are not able to understand what your teacher is teaching, you use Copilot, you use ChatGPT, DeepSeek. There are many other apps. There are so many artificial intelligence, so many options are available. मुझे एक नंबर पे Copilot लगता है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा Copilot रिजल्ट देता है, ठीक है, बगैर किसी फीस के, ठीक है। ये देखिए आप, अब यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट अ टीचर, उसका बोले ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, तो उसका नेगेटिव बना। कितना सिंपल है, किसी भी जुमले का, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के पास नॉट लगाना चाहिए। तो इसमें एम इज आर, उसके बाद नॉट लगाइए, आई के साथ एम लगता, और जो सिंगुलर है ही शी इट, उसके साथ इज लगता, और यू वी दे, यू सिंगुलर हो प्लूरल हो हमेशा उसके साथ आर लगता, और एम इज आर के बाद नॉट लगाने से क्या बनता, नेगेटिव बनता। अभी आपने क्या करना है कि सब चीज़ें एक साथ नहीं सीखना है। अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अपने को लगता है कि एक ही दिन में सब सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है। इफ़ यू वांट टू लर्न इफेक्टिवली, यू लर्न स्टेप बाय स्टेप। आप पहले ये सीखो आई, ही शी इट, उसके क्या मानी होते हैं। आई मतलब मैं होता, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट ये वो। इट का इस्तेमाल बेजान चीज़ के लिए होता, इट का इस्तेमाल छोटे बच्चे के लिए भी होता, इट का इस्तेमाल वहाँ पे भी होता जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं लगता। जैसे कि वो मैं था, इट वॉज मी, इट वॉज यू, वो तुम थे, तो वो के बदले यहाँ पे ही इट नहीं आया, तो वहाँ पे इट लगता जो सिंगुलर की तरफ इशारा करता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके आपको सीखना नहीं है। पहले सब्जेक्ट सीखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सीखना है, उसके बाद पॉजिटिव सीखना है। आपने कम से कम 50 एग्जाम्पल सीखना है। आप बोलेंगे सर आप तो संडे को एक ही सेशन लेते, हम कैसा सीखेंगे। Copilot, उसको दो प्रॉम्प्टिंग, गिव मी 50 एग्जाम्पल्स ऑफ एम इज आर। Copilot के बाद बहुत फुर्सत है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका नेगेटिव उसने बना के दिया, ठीक है। तो इस तरह से अपना आप लोग सीख सकते हैं। तो अभी मुझे क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन, टीच मी हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा मैं टाइप कर रहा हूँ, आप वॉइस कमांड देके भी कर सकते हैं, यूजिंग एम इज आर, ठीक है। गिव 10 एग्जाम्पल्स, गिव 10 एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद में वापस लिखता मैं उर्दू। अच्छा मैंने वर्ब नहीं लिखा तो भी समझ जाता हूँ, हिंदी एंड मराठी। अच्छा उसको मैंने ये लिखा भी नहीं कि ट्रांसलेट यूज, सिर्फ मैंने लैंग्वेज लिखा, वो समझ जाता हुआ कि सर क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये 30 सेकंड्स लेता है, कोई बात नहीं, 30 सेकंड्स रुकना है आपने। एआई भी अपने को सिखाता भाई, आपको सब्र करना सीखना है, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, ठीक है। अब उसने बताया कि 10 कॉमन एग्जाम्पल, उसने बोला एम इज आर का इस्तेमाल, उसका ट्रांसलेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ 10 एग्जाम्पल। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। क्या मैं स्टूडेंट हूँ, एम आई ए स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि ही इज योर ब्रदर, वो आपका भाई है। ही इज नॉट योर ब्रदर, वो आपका भाई नहीं है। इज ही योर ब्रदर, इज ही योर ब्रदर, क्या वो आपका भाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। और स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया तो Copilot में जाके आप, जैसा मैंने कमांड दिया, आप कमांड प्रॉम्प्टिंग आपको आना चाहिए। आज का जो लेसन है वो पहला लेसन है कि आपको प्रॉम्प्टिंग आना चाहिए। अच्छा मैं आज आपको वर्ब नहीं सिखा रहा, मुझे लगता है कि पहले एम इज आर, हैज़ हैव, ये अच्छे से आया तो फिर वर्ब बाद में आना चाहिए। पहले आपने सीखना चाहिए भाई सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, प्रोनाउन है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज़ करते हैं, एम इज आर, फिर नेगेटिव कैसा बनाते हैं, फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसा पूछते हैं। क्वेश्चन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते कि उर्दू में क्या लफ्ज़ आता, जैसे कि पहला एग्जांपल देख सकते हैं आप, एम आई ए स्टूडेंट, उसमें ए कैपिटल हो गया क्योंकि जुमले की शुरुआत कैपिटल से होती। एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं तालिब इल्म हूँ, ठीक है, क्या मैं छात्र हूँ, मैं विद्यार्थी आहे का, ये उसने ट्रांसलेशन करके दिया। अभी मुझे ये बोलना है कि भाई
इसमें तो उर्दू में क्या लफ्ज़ आया, तो इसमें इंग्लिश में व्हाट आना चाहिए, क्योंकि तर्जुमा अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो क्या को व्हाट बोलते, तो इसमें व्हाट क्यों नहीं आया। ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते, अक्सर लोग इसका एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते। मुझे ऐसा लगता कि जिसका आंसर यस या नो में आता, आप बड़े बड़े ध्यान से सुनिए, जिसका आंसर यस या नो में आता है, इंग्लिश में उसके क्वेश्चन में व्हाट नहीं आता। आई रिपीट, इंग्लिश में मैं अगर कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तो आमतौर पे WH से पूछते या हेल्पिंग वर्ब से पूछते, शुरुआत जिसकी शुरुआत WH से होती या हेल्पिंग वर्ब से होती। अभी लोग बोलते हैं कि इसमें क्या लफ्ज़ उर्दू में आया, लेकिन इंग्लिश में व्हाट क्यों नहीं आया। उर्दू वाला जो क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश वाला परेशान हो जाता। अच्छा, इंग्लिश वाला बहुत अच्छा बोलता है, उसकी फ्लुएंसी अच्छी होती है, ब्रिटिश एसेंट, अमेरिकन एसेंट, लेकिन वो बोलता भाई एसेंट में नहीं सीखना है, मेरे को बेसिक सीखना है। वकील सर उर्दू मीडियम के, तो आपको बताएंगे उसका आंसर। वो क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो आता है, उसके क्वेश्चन में इंग्लिश में व्हाट नहीं आता। जैसे कि एम आई स्टूडेंट, इसका आंसर एक तो है यस आई एम ए स्टूडेंट, नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो जिसका आंसर यस नो आता, उसके उर्दू में क्वेश्चन में क्या आता है, लेकिन उसके इंग्लिश में व्हाट नहीं आता। अगर आपको समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो मैं बोलूंगा कि ऐसा सवाल उर्दू में आप कीजिए जिसका जवाब यस या नो, हाँ या नहीं में आता है। तो क्या लफ्ज़ उर्दू में आता है लेकिन इंग्लिश में व्हाट नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जो उर्दू के बच्चे पूछते, बड़ा परेशान रहता उर्दू वाला कि उर्दू में क्या आया तो इंग्लिश में व्हाट क्यों नहीं आया। तो उसका उसका जवाब था जो मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, तो आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट के लिए एक मौका दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की मिसाल है, और पिछले बार मैंने आपको दिस दैट भी बताया था, मुख्तसरों में आपको बता भी देता हूँ। टीच मी दिस दैट these and those। ओके 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 ओके, ये उसने यूज बताया उसका, आप देख सकते। दिस ये नज़दीक के लिए, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता। देखो दो चीज़ें, दिस जो रहता वो सिंगुलर यानी एक चीज़ वाहिद के लिए इस्तेमाल होता, एक वचन के लिए, और वो नज़दीक होना चाहिए। दैट ये सिंगुलर के लिए होता, लेकिन ये थोड़ा दूर होना चाहिए, जो बोलने वाला स्पीकर उससे दूर होना चाहिए। दीज ये जमा में होता है, दीज के एक से ज़्यादा रहा तो, और दोज ये दैट के प्लूरल फॉर्म में होता। बड़ा अच्छा सिंपल बताया एआई ने, आप उसका एग्जाम्पल भी देख सकते। दिस इज, जैसे कि दिस बुक उसने बोला, सिर्फ इशारतन बोला, ये सेंटेंस नहीं है। दिस इज द बुक नहीं बोला उसने, उसने सिर्फ इशारा की, दिस इज नॉट ए सेंटेंस, दिस बुक यानी ये बुक, ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये इशारा बता रहा है कि नज़दीक के लिए बताया उसने। अब जिसने यहाँ बताया दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस है, आप उसका ट्रांसलेशन भी देख सकते। ये मेरी किताब है जो नज़दीक है, ये मेरी किताब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, एम इज आर के बाद नॉट लगाओ, दिस इज नॉट माई बुक। हाँ, दैट इज योर पेन, वो आपका पेन है। ये नज़दीक के लिए दिस, वो थोड़ा दूर रहा तो दैट, दैट्स योर पेन। दैट इज को शॉर्ट में दैट्स बोलते, दैट्स, पहले दैट इज सीखना है, बाद में दैट्स बोलना है। दैट्स योर पेन, वो आपका पेन है, वो आपका पेन नहीं है। दैट्स नॉट योर पेन, दैट इजंट योर पेन। क्या वो आपका पेन है? इज दैट योर पेन? क्या वो आपका पेन नहीं है? इजंट दैट योर पेन? तो ये बड़े, देखो आप देख सकते कि एआई ने कितना अच्छा, उसको याद है वकील सर ने मुझे कॉलमनर फॉर्म में बोला था, हिंदी मराठी उर्दू बोला था, एकदम ज़बरदस्त। आपको शायद ही कोई ऑथर का ऐसा बुक मिलेगा जो इतने आसानी से उसको नहीं का उसका इस्तेमाल बता देता, बड़ा उसने अच्छे से बताया। तो वर्ब मैंने शुरू नहीं किया जानबूझ के, मुझे लगा कि आपको पहले थोड़ा सा, आई विल जस्ट स्टॉप माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट। हमारे साथ में हाफिज़ साहब अब आए हैं, जावेद साहब, जिन्होंने फीडबैक भी दिया था। अगर इफ़ यू आर देयर आई विल अलाउ यू टू स्पीक।
आई थिंक यू आर नॉट विजिबल टू मी. क्या नाम से है? जावेद JAV. ओके. हाफिज सर, प्लीज अनम्यूट एंड गिव योर फीडबैक. आज का अपना सेशन था, सब्जेक्ट एमिजार. तो हाउ वाज द सेशन एंड हाउ वी यूज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Bismillahirrahmanirrahim. Dear learners, first of all, I thank from the bottom of my heart to Dr. Sayyid Wakil sir because he had started a very genuine and noble step to teach how to use the AI, not to teach English. Remember, बंद किया मेरा. he had cleared in his objectives that he is there to help all the learners how to use the AI effectively to teach any subject. First of all, he had given so many examples that a learner from vernacular medium he is able to teach English or any subject of its own choice or whatever he feels that particular subject is difficult. So try to understand first the steps of how to use the AI. Install all the AI apps as he had mentioned in this online session. Copilot and make your learning very easy. And again, I am thank Mr. Vakil from the bottom of my heart to take such a great initiative to teach English in a very interesting and effective manner. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सर. वो वीडियो ऑन कर सकते. अब मैंने वो सेटिंग ऑन किया. अच्छा, मैं सेशन लेते वक्त सीखा मैंने कि मुझे सेशन डिसिप्लिन से लेना है. तो मैं सीखा कि भाई किस तरह से लोग उसको अनम्यूट नहीं कर सकते, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लोग वीडियो ऑन नहीं कर सकते. तो मैंने थोड़ा सा जानबूझ के किया था कि आप सुने मुझे ध्यान से. अभी आप वीडियो ऑन कर सकते. अच्छा, हाफिज जावेद साहब भी हैं. मैं आपको एक मिनट सर ऑन करता हूँ. अनम्यूट करो. एक मिनट, मैं सेटिंग चेंज करता हूँ. दूसरों ने अनम्यूट नहीं करना है प्लीज़, सिर्फ हाफिज साहब करेंगे. एक मिनट, जस्ट 1 मिनट. एक मिनट दीजिए मुझे. रिएक्शन. यस हाफिज साहब भी ऑन कीजिए अब प्लीज़. देखिए, इफ आर यू एबल टू स्विच ऑन. अभी देखिए ऑन करके. हाफिज साहब ऑन कीजिए. आपका ऑन हो रहा है क्या? देखिए, मैंने सेटिंग चेंज किया है वैसे. हाँ, अगर आप अपने कैमरा ऑन करना जी चाहे तो जी अभी कर जी, सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम सर. प्लीज ब्रीफ, हमदे प्लीज गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम वे यू आर टॉकिंग एंड गिव टुडेज फीडबैक. टुडेज स्पेशल गेस्ट मोहम्मद हाफिज जावेद साहब. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Uh, my name is Muhammad Javed. I'm from Navsari, Gujarat. And basically, I'm here in Dubai. I'm doing job here. I'm here since 2008. And Alhamdulillah, I'm glad to here. Thank you very much, Dr. Sir. Actually, I just woke up. It is Sunday. I just woke up. So, yes, Dr. Sir, you can ask me the questions. Just your feedback please. Your How was voice the is not, session? your mic is turned off. Your mic is turned off. How your feedback? How was the session? Alhamdulillah, your sessions are very nice, very good. Actually, I'm sorry. I just joined because I just woke Okay, up. no I'm problem. not I have feeling shared well, it. but I got a message when I woke up. Yeah, I yeah, saw yeah. your message. That's why I joined. So, Alhamdulillah, I know I sent you a message. You are doing a good job, and Alhamdulillah, it's a good initiative. Thank So, you. may Allah bless you, and especially for the kids. I just want to give them a message. This is a very, very good Okay. opportunity. Thank you very So, much. don't miss it, grab it. Grab Yeah, it. yeah. Inshallah, it will be beneficial. It's a very nice Thank thing. So, nowadays, people are using AI.
So just now, I think Abdul sir said, Dr. Saab is not teaching English. He is teaching how to use AI. Yeah, it's a very big thing, you know. So nowadays, it's a very useful. Many AI applications are there. If you are using WhatsApp, there are Meta Chat and Chat GPT, and so many AI tools on the website. So in our corporate field, I'm in a corporate field, so we are also using AI. So our use is different. We are using for some production, some product image and some. So many uses. You know, you can use as you want, as you want. You can ask any questions to AI, not for learning English. You can ask you want to know for any celebrity, if you want to know something for any culture, if you want to know something like any country. So if you want to know about some business, so AI is a very good thing, you know. So it's how to use. You have to know how to use it. Okay. Okay, So okay. the way you use, you will be get the result according that. Thank you very much, So Hafiz Saab, for your mic is turned off, sir. What's up? Your mic is turned off. thank you very much for joining and giving your feedback. Yeah, Alhamdulillah. Shukran, shukran, Jazakallah khair. And especially for the students, I just want to give message again. You know, nowadays it's if you want to learn something, if you want to go to the tuition, you have to pay a hefty fees. But this is a free platform, and someone is doing he's giving his time, his efforts and his experience is bringing to you. So it's like a thirsty people waiting for the water, but you know the well is coming to you. So you have to grab the opportunity, and you have to learn what he is teaching you, and inshallah it will be very good for you. Actually, the time is running out, so I'm not Yeah, able yeah. to speak more. So I'm sorry, Wakil Saab, I took a long time for you. No, no, no. Okay, inshallah, next time I will give my brief introduction and all the things. Okay, Like okay. if I want to speak, but I think the time is going over. So Jazakallah khair to everyone for having me here, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That was Mohammad Hafiz Your Javed mic Saab. is turned off, Wakil Saab. Your mic is Okay. turned off. Please turn on. Okay, that was Mohammad Hafiz Javed Saab. Thank you very much for joining and giving your valuable feedback. That was listening skill. देखो हमने हाफिज जावेद साहब को मैसेज किया, रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और थोड़ा बोलो। इंग्लिश बोलना आदमी बाद में सीखता है ना। डॉक्टर वकील इंग्लिश क्लब का मकसद ये है कि हम आपको अवेयर करें। हफ्ते में आधे घंटे में क्या सिखा सकते हैं आपको। अभी मेरे 5-6 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन मैं आखिरी में ख़त्म करूँगा। उससे पहले आपको ये बोलूँगा कि आप पेरेंट्स जो है बच्चे को घर पे इंग्लिश में बात कीजिए उससे। सादा सिंपल, कम हियर, गो देयर, टेक योर लंच, कंप्लीट योर होमवर्क। कोई भी आपका एजुकेशन आप बोलो, एक माहौल बनना चाहिए। खास करके हमारा जो खानदेश का एरिया है वहाँ पे बिल्कुल माहौल नहीं है। आप माहौल बनाइए घर पे, और जो बोल रहा है उसकी हौसला अफजाई कीजिए। और बच्चे को आप मोबाइल जो देते हैं उसको बोलना भाई आपको आपकी पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं, मेरा मकसद है ये सेशन के ज़रिए मैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ये पैगाम दूँ कि आप मोबाइल का, लैपटॉप का यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, अपनी पढ़ाई में करो। आपको नहीं समझ में आ रहा आपका सब्जेक्ट, आप एआई से पूछो, उसको बोलो एक्सप्लेन मी इन हिंदी, एक्सप्लेन मी इन मराठी, एक्सप्लेन जो भी आपको, आपका अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, एनी सब्जेक्ट आप उसको यूज़ कीजिए। और आपको नहीं समझा तो बोलो मेक इट सिंपल, मेक इट इन सिंपल वर्ड्स, राइट इन 100 वर्ड्स। ये आपको कमांड अच्छे से प्रॉम्प्टिंग आना चाहिए। आज का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आपको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसको साथ में सीखना पड़ेगा। आपको उसको इग्नोर करके नहीं। अगर मैं टीचर हूँ, मैं एआई नहीं पढ़ूंगा तो नहीं चलेगा, मुझे सीखना ही पड़ेगा। तो एक मैसेज मैं आपको दूंगा सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, अगर आप कामयाब बनना चाहते बेटा तो एक टिप मैं आपको मेरी तरफ से दे रहा हूँ कि आपको रात में 10 बजे तकरीबन 10 से 11 के बीच में सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ऐसे मैं रोज़ आपको हर सेशन में कुछ ना कुछ एक गुड हैबिट के बारे में बोलूँगा इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। आज का जो मेरा टिप है, जो मेरा जो लेसन है वो ये है कि आपको जल्दी सोना है,
10 बजे से 11 के बीच में पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि मोबाइल रखना है बच्चों से लेके, उनके पास नहीं देना है, उसको लॉक में रखना है और फिर सुबह उनको देना है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक लेसन था। मोबाइल का यूज़ 10 के बाद ना पेरेंट्स करें, ना बहुत हो गया तो आप हो मेरा मैसेज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर वकील्स इंग्लिश क्लब। नेक्स्ट संडे को विल मीट अगेन एंड will please join Dr. Wakil's community. I will share the link to join. Thank you very much for joining. You can send me your feedback on my personal WhatsApp number. Thank you very much. Have a nice day. Jazakallahu khair.